Good morning, students. Today we are going to study the third and last part of chapter Magnetic Effects of Electric Current. In last two classes you have studied that every current carrying conductor behaves like a magnet. Every current carrying conductor in any shape, straight, coil or circular has magnetic field lines and you have drawn all of them. This is circular loop and this is solenoid. In second class you studied about that electromagnet and that since current carrying conductor behaves like a magnet, so it will also experience force by another magnet. So it was given by Ampere that if current carrying conductor produces magnetic field and if it exerts a force on magnet, then magnet should also exert a force on current carrying conductor. You have studied this. You have studied Fleming's left hand rule, which is used to find out the direction of force experienced by a conductor, and it is maximum when three of these parameters, force, magnetic field and current, are perpendicular to each other, and zero when magnetic field and current are parallel. I told you about this in Google Meet session yesterday. So now we are proceeding with the next important concept of this chapter, which is electromagnetic induction. Induction means production and electro means electricity and magnet. So you have studied that every current has magnetic field. Current produces magnetic field. But can magnetic field produce current? Can magnetic field produce current? Yes. How? See, if any conductor or wire, any wire, is placed in magnetic field, you studied previously that if current carrying wire placed in magnetic field, it experiences force. But I am saying only wire. Wire means without current. There is no current in that wire. So if any wire or conductor placed in magnetic field, will the current will be produced? No. Current will be produced when magnetic field is changing. Means whenever the magnetic field associated with the conductor changes, then current is induced in that conductor. Okay. In any conductor, current can be induced, voltage can be induced if magnetic field around it changes. And how can it change? It can change when you move the magnet or you move the coil or conductor. In this figure, what are you seeing? You are seeing that there is a conductor, coil is a conductor, and there is a magnet, north and south. Okay, so what are we doing? We have to change the magnetic field around this coil. We have to produce current by magnetic field. To do that, we have to change the magnetic field. For that, we have to either move the magnet or the coil. In that case, the magnetic field around this coil will change. Okay. If I explain to you in simple manner, guess this is a magnet and this is a conductor. Okay. When you move the magnet, what happens? Magnetic field changes around this conductor. Initially, this magnet was far, but now this is close. This is moving towards. So obviously, magnetic field will be more around this conductor. Magnetic field is changing, okay? But if you move this magnet away from this conductor or wire, what will happen? Magnetic field again changes, but in opposite direction, right? It will reduce. Or in another case, what can you do? Instead of moving the magnet, you can move conductor, right? In that case also, magnetic field around the conductor will change because initially the conductor was, this is your magnet, this is conductor. Okay, so this is its magnetic field, north to south, like this. Okay, so if conductor moves or magnet moves, so obviously magnetic field around this will change. Okay, that current is induced in a coil when magnetic field is changed associated with it.
or you can say the motion of magnet with respect to coil. Okay, or change in the magnetic field induces a potential difference in the coil and produces an induced current. So you can write change in the magnetic field induces a potential difference in the coil and produces induced current. This is called electromagnetic induction. Or in simple terms, you can say electric current can be induced in a conductor when magnetic field changes around this. Or you can learn from here that change in magnetic field induces potential difference. Okay, so there are two terms, induced current and induced potential difference. What is induced? Induced means produced, and how it is produced? By changing the magnetic field. So the current which is produced by changes the magnetic field is called induced current, and potential difference which is created due to changes magnetic field is called induced potential difference. And you also know that current is always produced when potential difference is produced. पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. जो बैटरी होती है, सेल होती है आपकी, वो क्या करती है? वो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करती है, उसके बाद करंट प्रोड्यूस होता है. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है, देन फर्स्ट potential difference is induced and then current is induced. This is called electromagnetic induction. So in this figure, what are we doing? This is a coil and we are moving magnet, north pole here, south pole here, into and away from this coil. Okay, there is a device which is known as galvanometer. What? Galvanometer. You can see here. So galvanometer is a device which is used to detect current. एक एमीटर होता है, एमीटर तो करंट की वैल्यू बताता है, बट गैल्वेनोमीटर शोज द प्रेजेंस ऑफ करंट. इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर needle will move. This is galvanometer. Okay, so you can see we are changing magnetic field around this coil by moving the magnet inside. What will happen? As long as the magnet is moving, okay, magnetic field is changing, and as long as magnetic field is changing, current is induced. Okay, so when this is moving, this magnet is moving, current is produced, and galvanometer shows deflection. Okay, but when this magnet is stationary, when magnet is not moving, it means magnetic field is not changing, and in that case the current will be not produced, then galvanometer will not show any deflection. Now what will we do? We have to change the magnetic field in any way. So now we are moving the magnet outside of the coil on the opposite direction. Still the magnetic field is changing. Okay, because magnet is going away from the coil, so magnetic field is reducing, magnetic field is changing, so the current is induced. But what is the difference? Now the galvanometer shows deflection in opposite direction because current is now induced in opposite direction, because current is now induced in opposite direction. So the galvanometer shows deflection in opposite direction because magnetic field is changing in other direction. Okay, so this is what we do. If a magnet is moved towards or away from a coil, the galvanometer shows a deflection. This shows current is induced. Okay, I am asking you one question. Instead of this magnet, if we move coil, अगर हम coil को move करते हैं तो क्या magnetic field change होगा? Obviously. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मूविंग, अगर कोई फायर है, कहीं पर आग जलाई हुई है आपने, देन इफ फायर कम्स टुवर्ड्स यू, यू विल फील मोर हीट. और इफ यू मूव टुवर्ड्स फायर, अगर आप फायर की तरफ मूव करते हो तो भी यू विल फील मोर हीट, एंड इफ यू मूव अवे फ्रॉम द फायर यू विल फील लेस हीट. So it is the movement of either you or fire. Similarly, it is the movement of either magnet or coil. In any case, magnetic field will change and current is induced. Note the point. जिस पॉइंट पर जितने देर तक मैग्नेट मूव या कोयल मूव कर रही है, उतने ही टाइम तक करंट प्रोड्यूस होगा. जैसे ही स्टेशनरी हो जाएगा मैग्नेट या कोयल, करंट जीरो. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहना चाहिए. सो व्हाट आर द अदर मेथड्स? और क्या कर सकते हो आप करंट प्रोड्यूस करने के लिए? बैटरी तो लगाते ही हो आप, हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. सो आप मैग्नेट मूव कर सकते हो, कोयल मूव कर सकते हो. कैन यू यूज़ अनदर थिंग इंस्टेड ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट की बजाय आप कुछ और यूज़ कर सकते हो जिसका मैग्नेटिक इफेक्ट हो. फर्स्ट रूल याद कीजिए इस चैप्टर का, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड.
सो आप मैग्नेट की जगह कोई करंट कैरिंग कंडक्टर भी यूज कर सकते हो. सो नाउ सी, you can see two coils here. In this figure you are seeing two coils. One coil is carrying current. एक कोयल में करंट है, कोयल 2 में करंट नहीं है. हमें इसमें करंट इंड्यूस करना है. वी हैव टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हो या ईएमएफ बोल सकते हो. पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना है. हाउ विल इट हैपन? सेम थिंग, नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. जो आपका जो करंट वाला कंडक्टर है ये, this is also behaving like a magnet. You know why? This is current carrying conductor, so it is magnetic field. Okay, so what are we doing now? We are not moving. If we move this, then also magnetic field is changed and galvanometer shows deflection. That is simple, you know. But here what we are doing, we are opening the key and closing the key. Okay, so when we close the key, current starts in this coil. This is primary coil 1, this is secondary coil 2. Okay, so when key is closed, current starts flowing in this coil. Okay, so you know current value changes from 0 to some value. Initially 0 था current, बाद में कोई value हो गई. एज यू नो, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, और करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा. सो पहले क्या था, जब इसमें की ओपन थी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था. जैसे ही आपने की क्लोज की, करंट प्रोड्यूस हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया. और जैसे ही आप की क्लोज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा अराउंड दिस कंडक्टर. हमें इंड्यूस तो कोइल 2 में करंट करना है ना, इसमें तो पहले से करंट है, हमें प्रोड्यूस करना है इसमें कोइल 2 में. सो व्हेन द की इज क्लोज्ड, an induced EMF or potential difference is created, so current is induced in coil 2. Understood? Now tell me, galvanometer shows deflection because there is current. अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कोइल 1 में करंट फ्लो कर रहा है, तो कितने टाइम तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा? मान लीजिए ठीक है, मैंने की को क्लोज कर दिया है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया इसमें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ अराउंड 2, सो इसमें भी करंट इंड्यूस हुआ. ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या करंट इसमें कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहेगा? यस और नो? देखिए, करंट शुड बी चेंजिंग, सॉरी, करंट, यस, करंट और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी चेंजिंग. करंट चेंज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है. सो इफ द करंट इज स्टीडी, स्टीडी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, सेम वैल्यू है करंट की. इफ द करंट इज स्टीडी, देन magnetic field will not change, so current will not be induced. So for induced current, the current should be changing, magnetic field should be changing. So this galvanometer shows deflection only when we close the key. After that, current is same in this coil, so magnetic field produced by it is not changing, so galvanometer shows no deflection. Okay, now what we do, we open the key. open the key means सर्किट में से करंट का फ्लो हमने बंद कर दिया. देन करंट की वैल्यू क्या चेंज होगी? फ्रॉम सम वैल्यू टू 0, अगेन वैल्यू चेंज हो गई. देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी. ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट द करंट शुड बी चेंजिंग in primary coil current should be changing. Only then magnetic field around coil 2 will change, and then only induced current will be produced. Okay, what was the rule? To produced current in coil 2, magnetic field around it should change, and it will change when current in the coil 1 will change, because current has magnetic field. So when we close the key, it changes from 0 to some value, so induced current is produced in 2. And when the current is flowing in 1, there will be no current in 2 because current is not changing, it is same. When we open the key, the current value
again reduces to 0. So magnetic field around this will change, and so current will be induced in opposite direction. Okay, so I hope you have understood. You have understood the meaning of induced current, induced potential difference, primary coil, secondary coil. Okay, so this was the third rule of this chapter, third concept of this chapter. What did we do in this? We found out the current, right? We induced the current, but how will you find out the direction of that current? For that you will study Fleming's right hand rule. It is similar to Fleming's left hand rule. What is the difference? Can you guess? Yes, left hand rule gives the direction of force, because we were talking about the force experienced by conductor when placed in magnetic field. But here we are talking about current induced when magnetic field around it changes. So the direction of induced current is given by Fleming's right hand rule. You have to take forward your right hand and do the same procedure. Thumb, forefinger, middle finger. जो रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट में था वही राइट में है. थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स करंट. बिकॉज इन दिस रूल वी आर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो हम करंट को सबसे बाद में लिखेंगे. वी विल लाइक, if the held is perpendicular to each other, the thumb points in direction of motion, means force, the forefinger points in magnetic field, then the middle finger shows the direction of induced current. Okay, so you can visualize this, you can try it yourself. Right hand, okay, thumb represent motion of any magnet or primary coil. Okay, forefinger represent the direction of magnetic field, then middle finger will represent the direction of current. Okay, induced current. This is same as in the figure. Understood? So if I give you a question that if the direction of motion of any conductor is upwards, okay, and magnetic field is in this direction, then what will be the direction of induced current? You can find out. Force is upwards, force is thumb, and current is magnetic field is this, then current direction will be towards you, outside of this page. Okay, so current will be like this, 90 degrees. Okay, so as you know that Fleming's left hand rule का एक एप्लीकेशन था, दैट वाज इलेक्ट्रिक मोटर. राइट हैंड रूल का कौन सा डिवाइस जो है अप्लाई होता है राइट हैंड रूल पर? दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? जनरेटर मीन्स जनरेट करना, क्या? करंट. जब लाइट चली जाती है हम जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर करंट इंड्यूस करता है. कैसे? बैटरी से नहीं. दैट चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड ऑन दिस रूल. दैट जो दिस रूल वाज गिवन बाय, यू शुड नो that ye electromagnetic induction rule was given by Michael Faraday. Okay, so this rule, based on this rule, that motion of the magnet or coil, okay, changes magnetic field and inducing potential difference. So what we do in electric generator, we need motion, force, and we need magnetic field. We need two things to produce current. Okay, so how do we get magnetic field? By north and south pole, जैसे कि आपने मोटर में किया था वैसे. ठीक है, मोशन में क्या करना है? हमें जो कॉइल है उसको मूव करना है. मोटर में क्या हुआ था? पहले आपने करंट दिया था, आपने जो है स्विच ऑन किया था, देन मोटर स्टार्ट्स मूविंग. लेकिन जनरेटर में आपको अपोजिट करना है, आपको जो है करंट प्रोड्यूस करना है. कैसे? कॉइल के रोटेशन से. सो व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड, then magnetic field is changed and current is induced. So generator वाला अभी आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है. आपको बस बेसिक याद रखना है. What is generator? Generator is a device that converts mechanical energy to electrical energy. मोटर से उल्टा, opposite, mechanical energy to electrical energy.
सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ जनरेटर। आपको ये डायग्राम, ये जनरेटर का कॉन्सेप्ट, जनरेटर की वर्किंग नहीं करनी है अभी, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज इसमें आप देखिए कि करंट इंड्यूस कर पा रहे हैं हम कैसे, ये जो कोयल है इसको मूव करके। ओके, सो आपने पढ़ा था कि या तो मैग्नेट मूव करो, नहीं तो कोयल मूव करो, दोनों में से कोई भी चीज़ मूव करो तो करंट इंड्यूस होगा। इसमें हम कोयल को रोटेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस करंट इज़ इंड्यूस्ड। इसमें हम बैटरी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें करंट नहीं चाहिए, हमें करंट बनाना है, ठीक है। तो उसमें सब डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। ओके, सो बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं। ओके, सो अभी आपको इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही याद रखना है, ठीक है। यू स्टडीड अबाउट अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि आपने मोटर में जो देखा था, तो आपने करंट की डायरेक्शन चेंज की थी, राइट। और जनरेटर में क्या होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है वो, उसमें भी ऐसा होता है कि करंट की डायरेक्शन जो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद चेंज हो जाती है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट which is only in one direction, that is direct current. A current flows in one direction, direct current, and the current that reverses the direction periodically is called alternating current. The most power stations in our country produces AC changes direction every 1 by 1000 seconds. Here it will be 1 by 1000 seconds, and its frequency is 50 hertz. दिस विल बी 1/100, राइट। सही लिखा है, 1/1000 नहीं, 1/100 ही लिखेगा, सॉरी। कैसे, देखिए फ्रिक्वेंसी जो होती है दैट इज़ 1/टाइम पीरियड। आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा, फ्रिक्वेंसी जो होती है 1/टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम पीरियड कितना होगा, 1/50। इट मीन्स 1/50 सेकेंड्स का मतलब है टाइम पीरियड क्या होता है, इन 1/50 सेकेंड्स इट कंप्लीट्स वन रोटेशन। ओके, वन रोटेशन 1/50 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो डायरेक्शन इज चेंज्ड इन हाफ रोटेशन, सो हाफ रोटेशन 1/100 सेकेंड में होगा। ओके, सो 1/100 सेकेंड के बाद ये डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, सो यू कैन सी दिस इज डायरेक्ट करंट, सेम डायरेक्शन, स्टेडी करंट, and this is alternating current, changing current, direction is changing. So the difference in direct current, alternating current you have understood. अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों चेंजेस हो रहे हैं, डायरेक्ट करंट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक एडवांटेज है एसी का, दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ओके, सो नाउ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सो जो आपके घरों में सर्किट होता है वो कैसा बना होता है। सो फर्स्ट थिंग आप याद रखिए, 3 वायर्स होते हैं, देर आर 3 वायर्स, ठीक है। एक वायर होता है अर्थ वायर, दैट इज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, एंड इट इज अटैच टू स्विचेस, जो आपके डायरेक्ट स्विचेस होते हैं वहाँ पर अटैच होता है, दैट इज ग्रीन इन कलर। सो अर्थ वायर इज ग्रीन, यू कैन सी ग्रीन वायर इज अर्थ वायर, एंड there are two main wires which are live wire and neutral wire. So live wire is red and neutral wire is black. Okay, so see this figure and try to understand the structure of your circuit in homes. So what is this? So listen carefully and see carefully. There are two wires, live wire and neutral wire. Okay, so what happens, there is fuse, you have studied about fuse, which melts when overloading or high current passes. You know that high current passes, तो melting point fuse का low होता है, so it melts, right? You know the function of fuse wire. So live wire passes through the fuse, you can see live wire is passing through fuse. Then live wire and neutral wire एंटर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो आपका घर में मीटर होता है, ओके, इन दैट बोथ द वायर्स एंटर, एंड फ्रॉम मीटर देर इज वन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसमें एमसील होती हैं। यू कैन सी जो फ्यूज़ होता है वो इस तरीके का होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है वो इस तरीके का होता है। यू कैन सी, यू मस्ट हैव सीन दिस इन योर होम्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स।
So these two wires, live wire and neutral wire, pass to distribution box. Then these wires go to switches. जो आपके घर में switches होते हैं, फैन, बल्ब, किसी का भी switch होता है, ये सब switches हैं. There these wires enter. You must notice कि जो अर्थ वायर होता है वो डायरेक्ट अर्थिंग होती है उसकी. अर्थ वायर का मीन्स होता है दिस वायर इज अटैच टू द ग्राउंड. ओके, सो दैट इट द करंट, जो अगर करंट ओवरलोडिंग होती है तो करंट जो है सीधा अर्थ में, मे बी स्विचेस समटाइम्स अगर आपको करंट लग जाए, सो व्हाट हैपन्स दैट करंट passes to the ground. If there is any leakage of current, then current passes to the ground by earth wire, because earth wire is connected to the ground. You can see this is the earth wire, green wala, and it is connected to ground, to the switches, and it is used for safety purposes. So fuse and earthing is used to safety purposes. Okay, so this is electric circuit. One important point, very important, very very important question जो है, that is कि these जो आपके devices होते हैं, जैसे कि bulbs हैं या फिर your bulbs, fans, you can see these all are connected in parallel. Here देखिए, यहाँ पर देखिए कि these all are connected in parallel. So why the electrical appliances are connected in parallel? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्चुअली ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, लेकिन इसमें भी इसका यूज़ हो रहा है. सो यू नो दैट इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस इज मिनिमम. यू नो अबाउट दैट, क्योंकि रेजिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 1/R लिखते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1. तो इन दैट केस रेजिस्टेंस इज मिनिमम. सो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होती है, ये एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का. सेकेंड, कि जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. कोई फ्रिज है, कोई बड़ा सा फ्रिज है, कूलर है, एसी है, और कोई छोटा सा बल्ब है. सो दीज डिवाइसेस नीड डिफरेंट करंट्स. कोई बड़ा डिवाइस है दैट नीड्स हाई अमाउंट ऑफ करंट, एंड यू नो दैट करंट की वैल्यू किस सर्किट में सेम होती है और किस सर्किट में डिफरेंट होती है. यू नो दैट इन पैरेलल सर्किट वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट, क्योंकि करंट हर वायर में डिवाइड हो जाता है and voltage is same. Okay, that's why there is another advantage that in parallel circuit current value is different. So every appliance gets current according to its need. Okay, and every appliance needs to work on same voltage, so voltage is same in parallel. So this is advantage. Another advantage is that if all the appliances are connected in series, तो क्या होगा, आप एक स्विच ऑन करोगे तो सभी डिवाइस आपके ऑन हो जाएंगे. बट अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हर डिवाइस का अपना स्विच होगा. सो वी कैन हैव डिफरेंट स्विचेस फॉर डिफरेंट डिवाइसेस. दैट इज थर्ड एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट. ओके, अनदर एडवांटेज इज दैट इफ द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर एक बल्ब या डिवाइस ख़राब हो जाता है तो सारे डिवाइस ख़राब हो जाते हैं. जैसे कि आप दिवाली पर जो लाइट्स लगाते हैं उसमें अगर एक बल्ब भी ख़राब हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी लाइट जो है ख़राब हो जाती है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सिमिलरली इन at your homes, if the devices are connected in series, then all the devices can get damaged. So this is another advantage of parallel circuit. So these are connected in parallel appliances. Okay, तो इसमें आपको इस इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आना चाहिए. आपको पैरेलल सर्किट का एडवांटेजेस पता ही है. फ्यूज़ के बारे में भी आप पढ़ चुके हो. इलेक्ट्रिक फ्यूज डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सर्किट, प्रोटेक्शन के लिए ड्यू टू ओवरलोडिंग. ओके, ओवरलोडिंग मीन्स हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज. वो कैसे भी हो सकता है, आइदर शॉर्ट सर्किट से हो सकता है या फिर वोल्टेज अगर ज़्यादा हो, देन ऑल्सो ओवरलोडिंग कैन अकर. सो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट happens when live wire touches the neutral wire. In that case, current suddenly increases. That is short circuit. So overloading can occur by short circuit or increased voltage. Okay. You know the principle of fuse, that due to its low melting point, it melts when high current flows, and it is made of alloys. So now you have to revise
the whole chapter from NCERT book and these notes. Okay. अभी हम जल्दी से एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं. आप सभी पढ़ चुके हो, क्लासेस में सब कुछ हो चुका है, बट बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो डिफरेंट हो तो हम देखेंगे. Why does a compass needle gets deflected near bar magnet? Because compass needle has the magnet. compass needle जो होती है मैग्नेट की बनी होती है. So obviously magnet attract or repel each other. So magnetic field lines interact with that of bar magnet. Okay. Magnetic field lines around bar magnet you have drawn. I have told you. Properties of magnetic lines of force, that they emerge from north pole and at south pole never intersect each other, and inside the magnet direction is from south to north and outside north to south. ये सब हो चुका है. Why don't two magnetic lines of force intersect? I have told you, because at the point of intersection the compass needle will show two different directions. Okay. Consider a circular loop of wire lying in the plane of table, current passing clockwise, right hand rule direction. वेरी सिंपल, आप कर चुके हो. टेबल है, टेबल के ऊपर एक लूप रखा हुआ है, सर्कुलर लूप. तो आपको डायरेक्शन बतानी है कि किस तरीके से डायरेक्शन होगी. सो आपको वही राइट हैंड जो रूल होता है उसकी तरीके से आपको पता लगाना है. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के लिए. राइट, ये वाला रूल नहीं, ये तो फ्लेमिंग रूल है राइट हैंड. ये वाला रूल राइट हैंड थंब रूल, जो कि हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. तो इस क्वेश्चन में आपको दो सेगमेंट लेंगे, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ. यू विल टेक टू सेगमेंट्स, और उस सेगमेंट्स में आप अलग अलग जो है डायरेक्शंस फाइंड आउट करेंगे. अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लास्ट क्लास में देखना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको. तो सेम थिंग है. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द पोल्स, विच फेस इज नॉर्थ पोल एंड विच फेस इज साउथ पोल. राइट. मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इन यूनिफॉर्म. सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे शो करते हो स्ट्रेट लाइन से. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट सोलेनोइड. सो इनसाइड, अंदर जो सोलेनोइड की करंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेम होता है हर पॉइंट पे. बाहर तो क्या होता है, बाहर तो आपको याद होगा कि हमने ऐसे ड्रॉ किया था. राइट. सो हर पॉइंट पे अलग अलग है. जहाँ पर लाइंस जो हैं क्लोज हैं, जहाँ पर लाइंस क्लोज हैं, एज यू कैन सी एट द एंड्स लाइंस काफ़ी पास पास हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा. और बीच में जो है लाइंस दूर दूर हैं तो कम होगा. लेकिन सोलेनोइड के अंदर हम बात कर रहे हैं, सोलेनोइड के अंदर या बार मैग्नेट के अंदर, उसमें तो जो है सेम रहता है. सो यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स. ओके. Which of the following property proton change magnetic field? Obviously it shows deflection. Proton will deflect, so its direction will change, velocity will change. ये लास्ट क्लास में हो चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी, मतलब ए बी पर जो फोर्स लगता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन करंट, when it is placed in magnetic field, when current carrying conductor is placed in magnetic field, then उस पर जो फोर्स लगता है वो किस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. सो आई हैव टोल्ड यू इन गूगल मीट सेशन कि करंट पर और मैग्नेटिक फील्ड पर और लेंथ पर, उस कंडक्टर की लेंथ पर. सो कुछ भी इंक्रीज होगा तो फोर्स भी उस पर इंक्रीज होगा. ओके. सो डिस्प्लेसमेंट भी रोड की इंक्रीज होगी. ओके. Magnetic field exerted on rod AB and its deflection will increase if current in rod AB is increased. Strong magnetic field is used and length of rod AB is increased. Okay. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल. सो मैंने आपको बताया था जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के सेम होती है. सो अल्फा पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन होगी. गूगल मीट सेशन में मैंने आपको बताया था. तो करंट की डायरेक्शन वेस्ट है. ओके. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है. सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड ने उसको डिफ्लेक्ट किया है, मतलब वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, फोर्स नॉर्थ की तरफ लगा है. तो हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है. सो ऑब्वियसली कौन सा रूल यूज़ करोगे आप? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करोगे, क्योंकि ये फोर्स की बात हो रही है. तो फोर्स की बात हो रही है तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करेंगे, मोटर वाला रूल यूज़ करेंगे. राइट. अगर इंड्यूस्ड करंट की बात होती तो हम राइट हैंड रूल करते, लेकिन ये फोर्स है तो लेफ्ट हैंड रूल्स करेंगे. उसके बेसिस पे मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे आपको निकालना है. विल एक्सप्लेन यू अगेन कि जो फोर्स की डायरेक्शन है प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स, दैट इज, तो आप डायरेक्शन कैसे लिख सकते हो? डायरेक्शन आप लिख लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ओके, दैट्स हाउ. सो जो डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या है?
वो है नॉर्थ, और जो डायरेक्शन जो है करंट की वो है वेस्ट। ओके, सो यू कैन सी ये मेरा लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो करंट की डायरेक्शन, करंट ये है राइट, करंट की डायरेक्शन क्या है वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालनी है राइट। फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, फोर्स की डायरेक्शन है नॉर्थ। So how will you do this? This is current, so this is west, middle finger west, okay, and force thumb, this is north, and so magnetic field is upwards। ऐसे आप करेंगे, ठीक है, ओके। सो upwards होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यू वेरी वेल नो अबाउट दिस राइट। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वेरी सेकंड जो रूल था, इसमें आपको क्या लिखना है, दैट करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं लिखना है हमें, वो इस रूल का, इस मोटर के प्रिंसिपल का पार्ट है, बट मेन आपको क्या लिखना है, जो मेन प्रिंसिपल है वो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिट रिंग इन मोटर, you very well know, I have explained, you have learned, it is reverses the direction of current after each half rotation। so पूरे रिवॉल्यूशन में 2 बार करंट चेंज होगा, हाफ रोटेशन में 1 बार करंट चेंज होगा। डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कोइल, कोइल में करंट कैसे इंड्यूस कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम बैटरी, उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, यू कैन मूव कोइल, कोइल इज मूव्ड रैपिडली या फिर मैग्नेट इज मूव्ड, कोइल को मूव करें या रोटेट करें, ठीक है, तो या फिर मैग्नेट को मूव करें, then electric current is induced in coil। Principle of electric generator, you know that electric generator works on the principle of electromagnetic induction। it generates electricity by changing magnetic field or rotating a coil in magnetic field। current is induced when magnetic field around a conductor is changes। okay, sources of direct current, direct current की क्या क्या sources हैं, सेल जो होती है वो डायरेक्ट करंट देती है, डीसी जनरेटर जो डायरेक्ट करंट देता है। अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स जो एसी जनरेटर्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोइल कॉपर वायर से रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा अगर कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा राइट। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है, तो आपको पता है करंट की डायरेक्शन जो है हाफ रिवोल्यूशन में 1 बार चेंज होती है, पूरे रिवोल्यूशन में 2 बार चेंज होती है। सो करंट चेंजेस वंस इन ईच हाफ रिवोल्यूशन, ओके। टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में सेफ्टी मेजर्स हम क्या यूज करते हैं, यू नो दैट फ्यूज एंड अर्थिंग। ईच सर्किट मस्ट बी कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड अर्थिंग इज मस्ट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स। दिस इज अनदर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आप कर चुके हैं। फ्यूज के फंक्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, तो आपको करंट निकाल सकते हैं, P इक्वल टू वी आई से आप करंट निकालेंगे 9.09 एम्पियर, लेकिन जो डिवाइस है उसकी करंट रेटिंग क्या है 5 एम्पियर ही है, तो ओवरलोडिंग होगी, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो क्या होगा, द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक ओवन इज 9.09 एम्पियर विच एक्सीड्स द सेफ लिमिट, सो फ्यूज एलिमेंट विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। वट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के लिए आपको क्या क्या जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज शुड बी कनेक्टेड, टू मैनी अप्लायंसेज शुड नॉट बी कनेक्टेड टू सिंगल सॉकेट, देन ओवरलोडिंग कैन अकर। एक बार में ज़्यादा अप्लायंसेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, और फॉल्टी अप्लायंसेज यूज़ नहीं करने चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं होगी, ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक फील्ड नियर ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, डी ऑप्शन होगा, वेरी इजी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, राइट। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट किससे करते हैं हम, जनरेटर से। गैल्वेनोमीटर तो क्या काम आता है, करंट को डिटेक्ट करने में। एमीटर करंट की वैल्यू। मोटर, मोटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी क्या है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, क्योंकि जनरेटर सिलेबस में नहीं है अभी आपका, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। शॉर्ट सर्किट, द करंट इन द सर्किट क्या होता है, इंक्रीजेस हैविली। ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा ट्रू और फॉल्स है, मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, नो, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। जनरेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, बी इज ट्रू। फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कोइल कैरिंग कंडक्टर विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ओके, सो सी विल बी ट्रू, क्योंकि लॉन्ग सर्कुलर जो कोइल होती है तो बीच में जो है पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है।
वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लाइव वायर. नो, ग्रीन इंसुलेशन जो है अर्थ वायर होता है, लाइव वायर रेड वायर होता है. सो यू हैव अंडरस्टूड. 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या सोर्सेज होती हैं? मैग्नेट तो होती है, उसके अलावा परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर. हाउ डज सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट या मैग्नेट? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट? सो वेरी इजी. आपको इसमें जैसे कि आपको बताया गया सोलेनॉइड का डायग्राम बनाना है, और नॉर्थ और साउथ पोल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? यू नो दैट करंट फ्लोज, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अगर कोयल में जो करंट है क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, देन द लेफ्ट साइड विल बी साउथ पोल एंड राइट साइड विल बी नॉर्थ पोल. ओके. और यू कैन ऑल्सो से कि जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला टर्मिनल होता है, उस तरफ नॉर्थ पोल होता है. ओके. किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं. करंट क्लॉकवाइज, सो लेफ्ट साइड साउथ, या फिर जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो साइड नॉर्थ पोल. ओके. सो व्हेन द नॉर्थ पोल इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट से आप कैसे निकालोगे? बार मैग्नेट आपको दे दी जाए तो आप कैसे निकालोगे कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा साउथ है? वेरी इजी. आप बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक पोल के पास लेकर आइए. ये बार मैग्नेट है, मान लीजिए, आप इसके नॉर्थ पोल को एक पोल के पास लेकर आइए. अगर ये रिपेल कर रहा है मतलब सेम पोल है तो ये पोल नॉर्थ होगा. अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब ये साउथ पोल होगा. ओके, वेरी इजी. When the force experienced by current carrying conductor placed in magnetic field largest, you know that when the current and magnetic field are perpendicular to each other. इस क्वेश्चन को देखिए आप. अच्छा क्वेश्चन है कि यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, एक रूम में बैठे हो विद योर बैक टू वन वॉल. जो बैक है आप वन वॉल की तरफ है, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, लाइक आई एम सिटिंग एंड माई बैक इज टुवर्ड्स द वॉल. ओके. इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स फ्रंट वॉल. ठीक है, पीछे वाली वॉल से जो है इलेक्ट्रॉन बीम आगे ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, फ्रंट टू बैक होगी. ओके. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स वाला रूल आ रहा है इधर, फोर्स लग रहा है करंट पर बाय मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड. तो डिफ्लेक्टेड ऑन राइट साइड, राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है. ठीक है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यू हैव टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके. व्हाट वी हैव टू डू, जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? करंट इज डोनेटेड बाय मिडल फिंगर, मिडल फिंगर से होता है. सो करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ ही होगी, राइट. करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? थंब की डायरेक्शन क्या है? राइट, माई राइट. ऐसे यू कैन सी मेरी फिंगर्स किस तरीके से हैं. ठीक है, मेरी फिंगर्स ऐसे हैं. जो करंट है वो मेरी तरफ है, फ्रंट टू बैक है, मिडल फिंगर ये, और जो फोर्स है वो राइट साइड है. ठीक है. सो यू कैन सी कि जो डायरेक्शन हमें किसकी निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे है. सो ऐसे आप जो है निकाल सकते हो. मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स. इन दिस आंसर यू विल राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ मोटर, प्रिंसिपल, वर्किंग, फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग. आप लास्ट क्लास में कर चुके हो, वही करना है. डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग और स्प्लिट रिंग का फंक्शन. यू विल डू दिस, राइट. This is a very very important question. It has to come in exam every time, so you must understand this very well. I have explained you many times. If still any doubt, you can ask me. Devices in electric motors, in which electric motors are used. So there are many devices. Water pumps, fans जिसमें रोटेशन होता है उनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होती हैं. ओके. कोयल है इंसुलेटेड कॉपर वायर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर. ठीक है. बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कोइल. कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेट मूव हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. पुश्ड इनटू द कोइल, galvanometer shows deflection in one direction. Withdrawn from inside the coil, galvanometer shows deflection in another direction. Stationary, magnetic field change नहीं होगा, so galvanometer shows no deflection. Two circular coils A and B are placed close to each other. दो circular coils हैं A and B, पास पास रखी हुई हैं. Current in coil A is changed. Will some current will be induced in B? एक है A, एक है B. तो करंट कब इंड्यूस होता है? दूसरी कोयल में, जब प्राइमरी कोयल में करंट चेंज होता है. सो जैसे ही चेंज होगा करंट, यस, द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन बी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड कोयल बी इंड्यूस करंट इन इट.
स्टेट द रूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। कौन सा रूल यूज होता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर? फ्लेमिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। जो राइट हैंड थंब रूल है वो किसने दिया था? मैक्सवेल ने, ठीक है। फोर्स का रूल किसने दिया था? फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड करंट इंड्यूस्ड करंट वाला रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर? जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बस में नहीं है अब, बट यू शुड नो द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वाई डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब लाइव वायर टचेस द न्यूट्रल वायर and overloading occurs, high amount of current occurs. Function of earth wire for safety, for insulation, okay. Any leakage of current is transferred to the ground, okay. So this was your chapter, this is complete. Tomorrow is your test, revise very well, watch all the videos, read the NCERT book, okay, and get prepared.